Hello everyone, I hope you all are doing great. So in this lecture we will be talking about aggregate supply. The topic is very simple actually. Basically इस टॉपिक में है क्या, हर कंट्री में प्रोड्यूसर्स होते हैं. जैसे कि इंडिया में प्रोड्यूसर्स हैं जो फर्नीचर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम बनाते हैं और काफ़ी सारे और भी प्रोड्यूसर्स हैं. तो अब जितनी भी वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये प्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड हैं एक ईयर में, उसी वैल्यू को हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई एंड दैट्स इट. तो जितनी भी वैल्यू के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर्स विल कर रहे हैं एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में सप्लाई करने के लिए, दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज एग्रीगेट सप्लाई. जितनी ज्यादा सप्लाई होगी उतनी ज्यादा इन प्रोड्यूसर्स की इनकम होगी और उसी इनकम में से इनको रेंट भी पे करना है, वेजेस भी पे करनी है, अपने प्रॉफिट्स भी निकालने हैं. सो मोर सप्लाई मींस मोर इनकम. बट इफ दे विल नॉट सप्लाई एनीथिंग एट ऑल, हाउ मच इनकम विल दे जनरेट? जीरो. सो द पॉइंट इज क्वाइट सिंपल. अगर बेटा ये कुछ भी सप्लाई नहीं करेंगे तो इनकी कितनी इनकम होगी? नथिंग. बट क्या स्टिल इनकी कंजम्पशन जीरो होगी? बेटा स्टिल they will have to eat food, they will have to wear clothes, they will have to pay the rent. So ultimately this is called as autonomous consumption. बेटा एक स्मॉल सी के ऊपर एक बार लगाया जाता है टू रिप्रेजेंट ऑटोनॉमस कंजम्पशन. दैट मीन्स कि इवन इफ दे विल अर्न नथिंग इन द इकोनॉमी, स्टिल देयर एक्सपेंडिचर विल बी समथिंग एंड दैट विल बी कॉल्ड एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन. एट दिस लेवल दे हैव डिस सेविंग्स. So from where this 40 figure is coming, they have to spend, but they are not earning anything. So they have three sources. Either they can use their old savings, or I can say past savings, or they can borrow the money from some other source, or they could simply sell their asset, one of their asset. So although not recommended, you should work and you should earn, then you should spend, right? But right now they are not earning anything at all, but they have to do some autonomous consumption that is supposed to happen in the economy. There are dis savings. So that means how much value of goods and services that they actually plan to generate. The value is actually zero because they didn't generate anything. As a result, they didn't earn anything, and autonomous consumption stands at 40 and they have to use their old savings as minus 40. So basically the main story is that whatever value of goods they will be supplying will be equal to the income that they will make. जितनी वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज वो सप्लाई करेंगे उतनी ही वैल्यू की उनकी इनकम होगी. एंड बेटा इनकम के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट जो कंज्यूम करते हैं, एक पार्ट जो सेव करते हैं. कंज्यूम मतलब पैसे जो खर्च हुए, सेव मतलब जो पैसे बचा लिए. तो अगर आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो एग्रीगेट सप्लाई can be equal to consumption plus savings. So ultimately whatever value of goods and services will be supplied in the economy will lead to that level of income of the producers in that economy. So whatever income they will make will be having of two-part consumption and savings. As a result, aggregate supply can also be calculated using consumption and saving. So basically long story short, कंजम्पशन और सेविंग को अगर हम प्लस कर देते हैं तो उससे इनकम भी एस्टिमेट हो जाती है और एग्रीगेट सप्लाई भी एस्टिमेट हो जाती है. अब इफ दे विल बी एम्प्लॉयड, इफ दे विल गिव गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, दे विल मेक सम मनी. हियर यू कैन सी इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 100 करोड़, कंजम्पशन हैज इंक्रीज्ड बाय 80 करोड़. 40 से 120 में कितना चेंज है? 80 करोड़ का. सेविंग्स में कितना इंक्रीज हो गया है? 20 करोड़ का. पहले कितनी सेविंग हो रही थी? -40, अब हो रही है -20. That means कि savings have increased by 20 CR, but still there are dis savings. दोनों ही levels पर हम देखेंगे तो savings negative में है, and this situation is called as dis savings. So 120 में से 20 को less करेंगे, you will get 100. Basically, consumption plus savings will be equal to aggregate supply in the economy. इन दोनों को add करके हम aggregate supply की value को calculate कर रहे हैं. फिर से income को 100 से increase करा, कंजम्पशन को 80 से इंक्रीज करा, सेविंग को 20 से इंक्रीज करा. पहले तो -20 थी, अब जीरो हो गई, मतलब 20 से बढ़ गई. बेटा जो चीज पहले -20 थी अब वो चीज जीरो हो गई है तो वो 20 से कम हुई है या इंप्रूव हुई है? इंप्रूव हुई है. ठीक है बेटा, नेगेटिव होने से तो बेटर जीरो ही है ना. अब जहां पर इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर होते हैं, इस पॉइंट को क्या हम नाम देते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट. बेटा सबसे ऊपर थी ऑटोनॉमस कंजम्पशन 40 करोड़ की, पर ऊपर वाले दोनों ही लेवल्स पर अगर आपने नोटिस करा होगा तो जो कंजम्पशन की वैल्यूज थी वो इनकम से ज्यादा थी, है ना. उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट पे जितनी वैल्यू इनकम की है उतनी ही वैल्यू कंजम्पशन की है. उसके बाद कंजम्पशन की वैल्यू से ज्यादा किसकी वैल्यू हो रही है? इनकम की वैल्यू. देखो यहाँ इनकम
कि सारी वैल्यूज कंजम्पशन की वैल्यू से ज्यादा है। 300 is more than 280, 400 is more than 360. तो once the economy reaches break even point, after that level people are earning more as compared to what they have to spend in the economy. So यहाँ पर अब आपकी savings होनी actually start हुई है. This is the actual amount of savings that should be happening in the economy. In order to make the savings positive, we have to go beyond break even point. ब्रेक इवन पॉइंट के बियॉन्ड जाकर आप देख रहे हो कि इनकम ज्यादा हो रही है, तब जाके लोग कुछ पैसे सेव कर पा रहे हैं। और जब हम इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं, वी आर अराइविंग एट एग्रीगेट सप्लाई इन द इकोनॉमी। नाउ हाउ विल इट ग्राफिकली लुक लाइक? बहुत सिंपल सा ग्राफ है जी। जो वैल्यू इनकम की है वही वैल्यू एग्रीगेट सप्लाई की भी है। सो एग्रीगेट सप्लाई विल बी ऑन वाई एक्सिस एंड इनकम विल बी ऑन एक्स एक्सिस। इस बेटा पूरी यूनिट में इनकम हमेशा आपकी एक्स एक्सिस पर आने वाली है और उसके साथ हम जो भी चीज प्लॉट करेंगे इट विल बी ऑन वाई एक्सिस। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीगेट सप्लाई ऑन वन वाई एक्सिस, इनकम विल बी ऑन एक्स एक्सिस। सो इनकम की वैल्यू अगर 100 है तो एग्रीगेट सप्लाई भी 100 है। अगर यहाँ पर 200 है तो यहाँ पर भी 200 है, यहाँ पे 300 है तो यहाँ पर भी 300 है। एंड एग्रीगेट सप्लाई बेटा किसको प्लस करके बनाई आपने? बाय एडिंग अप कंजम्पशन एंड सेविंग्स। So whatever values are there for income are the values for aggregate supply. तो आप नोटिस करो कि ये बिल्कुल ओरिजिन से ऐसे स्टार्ट होगा एंड इट विल मेक अ 45 डिग्री लाइन जस्ट लाइक दिस। एक 90 डिग्री का बेटा एंगल आपको ऐसा ऑब्जर्व होता है, और अगर बिल्कुल सेंटर से इसको हम ऐसे निकालें तो इट विल बी 45 डिग्री दिस मच। एंड टू बी वेरी क्लियर इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, जो आपकी कंजम्पशन और सेविंग वाली लाइन है दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंजम्पशन एंड सेविंग्स यू कैन सिंपली राइट एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम विल बी ऑन योर एक्स एक्सिस। सो एज द इनकम इज इंक्रीजिंग, aggregate supply in the economy is also increasing in the same direction, upward direction, same values. जो वैल्यूज यहाँ पर इनकम की हैं वही वैल्यूज वहां पर एग्रीगेट सप्लाई की हैं। सारे ही जो गैप्स रहेंगे उनमें कंसिस्टेंसी प्रॉपर्ली रहेगी। इसी रीजन की वजह से बेटा ये आपकी 45 डिग्री की लाइन जाती है। दैट्स हाउ इट विल लुक लाइक। आई बिलीव एग्रीगेट सप्लाई इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट इज बेसिकली इक्वल टू नेशनल इनकम इन द इकोनॉमी एंड द कंपोनेंट्स आर कंजम्पशन एंड सेविंग्स। सो इसको बेटा एक बार नोट्स में से रीड कर लेना प्रॉपर्ली। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक फील फ्री टू आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन और ऑन माय इंस्टा हैंडल। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।